جیسے اللہ کے جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے رکوع اور سجدوں میں، اسی طریقے سے صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، میرا کچھ انٹرنیٹ ایشو ہے آج۔ جی جی فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ کی میں بات کہہ میں نے رہا ہوں سنا کہ کہ اللہ کے جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے، ہاں رکوع کا سجدوں کا بھی ثابت ہے اور صرف شروع نماز میں کرنا بھی ثابت ہے۔ ہم۔ جی شروع نماز میں کرنا، دیکھیے آپ کوئی ایک موقع پہ بات کیجئے، رکوع کا اعلیٰ جو رفع الیدین ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، جی تو آپ اس کو کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ کیوں؟ جی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کے اندر ہے کہ ان کی نماز ایسی تھی کہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، اس کے بعد اس کو نہیں دہراتے، ٹھیک ہے، وہ یا حدیث صرف شروع بتائیے۔ نماز میں رفع نہیں ایسی تو نہیں، آپ بتائیے، الیدین۔ آپ کی جی بات میں جی نے سن لیا، آپ حضرت کا دعویٰ، اچھا میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک منٹ، آپ کا دعویٰ میں ریپیٹ کر دوں، آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، چھوڑنا ثابت ہے، تو اس چھوڑنے کی کوئی دلیل دیجیے، رکوع والا رفع الیدین چھوڑ دیا گیا، اس کی کوئی دلیل دے دیجیے۔ جی جی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی نے اس کہاں، کو نقل کیا ہوا ہے۔ کون سی کتاب میں؟ ہاں زید بھائی ذرا میں لائیے ان کی جی روایت وہی کو، پڑھ لائیے رہا ذرا، ہوں پڑھ رہا ہوں حضرت۔ جی زید بھائی ان کی روایت کو اسکرین پہ ترمذی لائیے، ہاں جی، نمبر دے سکتے ترمذی ہیں آپ؟ نمبر دے سکتے ہیں بھائی؟ 257 ترمذی جی جی ترمذی شریف 257 امام زید بھائی ترمذی نے حناد سے اس نقل کو کیا ہوا ہے۔ اسکرین پہ لائیے، ٹھیک ہے، رکیے جی رکیے رکیے، صبر جی کیجیے، لا رہے ہیں، ایک منٹ، ہاں جی ایک منٹ ہے بھائی جی، ابھی 257 آپ جی، تھوڑا سا خاموش رہیے، زید بھائی اسکرین پہ لا رہے ہیں، پھر ہم بات آگے بڑھاتے ایک منٹ اسکرین پہ لاتے ہیں، ایک منٹ۔ معذرت ایسے ٹائم پہ ایک سیکنڈ بھی ویسا، چلیں ریڈی، جی شیخ بتائیں۔ ہاں بھائی اسکرین پہ آ گئی حدیث، تھوڑا بڑا کیجیے، کیا یہی جی آ حدیث ہے گئی، بھائی صاحب جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ کیا جی آپ جی کی میں ایک دلیل منٹ یہی ہے؟ میں زوم کر کے دکھا دیکھ رہا ہوں دیجیے حضرت، زید ایک بھائی، منٹ۔ کیا یہی حدیث ہے؟ نہیں نہیں میں حضرت میں موبائل سے میں زوم کر کے دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ رک کریں جائے۔ آپ جی 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 زوم کریں آپ، جی میں زوم کروں، عربک ٹیکسٹ کو زوم کروں یا کہاں زوم بالکل، کروں؟ نہیں ہو گیا یہی ہے یہی ہے یہی ہے، نا، ٹھیک، اوکے جی چلیے جی اب تھوڑا سا رکیے، میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، اس بیچ میں ہم بولے گا، 2 منٹ مجھ کو دیجیے، آپ کو تھوڑا سا میوٹ کر رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر سے دہرا دوں، بھائی صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس دعوے کو چونکہ ہم بھی مانتے ہیں، اس لیے اس کی دلیل ان سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود صحیح بخاری کی دلیل ہے، یہ بھی جانتے ہوں گے۔ پھر بھائی صاحب کا دوسرا دعویٰ آیا کہ رکوع کا رفع الیدین چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ اب بھائی صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ بتا دوں؟ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی بار رفع الیدین کیا۔ یہاں پہ حدیث اینڈ ہے، شروع سے لے کر حدیث کا جو متن ہے شروع سے اخیر تک میں نے پڑھ دیا، اس پورے متن میں کہیں بھی رکوع کا لفظ نہیں ہے۔ بھائی صاحب کا دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے، اس طرح سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ رکوع کا رفع الیدین جیسے ثابت ہے صحیح بخاری میں کہ اذا رکع، جب آپ رکوع میں جاتے تو رکوع رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔
تو جس معیار کا ثبوت ہے اس ثبوت کے برخلاف اگر کوئی چیز آپ لا رہے ہیں تو آپ ایسی کوئی روایت لائیے جس میں رکوع کا ذکر ہو. آپ نے ترمذی کی جو روایت پیش کی ہے سند کی بحث بعد میں, لیکن سب سے پہلے متن پہ اس روایت میں رکوع کا لفظ ہے نہیں, اس لیے یہ آپ کے دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے. ایک چیز اور واضح کروں, یہ وہی لوگ ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو کیا کہتے ہیں؟ یہی لوگ کہتے ہیں اس میں امام کا ذکر بتاؤ, اس میں مقتدی کا ذکر بتاؤ, اس میں فرض نماز, یہ نماز کا ذکر بتاؤ. تو یہ سارے مطالبات یہ ہم سے کرتے ہیں. جب ہم کوئی دلیل پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ ہم سے سارے مطالبات کرتے ہیں. ہم بھی پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ ایک دعویٰ کرو, جو چاہے آپ دلیل پیش کر دو. ایسا نہیں چلنے والا ہے. جو آپ نے دعویٰ کیا ہے رکوع کا رفع الدین, یا آپ کی آواز ریکارڈ ہے, اس دعوے کے مطابق کوئی حدیث لاؤ جس میں رکوع کا رفع الدین چھوڑا گیا ہو, رکوع والی نماز ہو. یہ نماز رکوع والی, اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جی بھائی صاحب, زید بھائی اب ان کو بولنے دیجیے. جی جی کبھی میں آؤں گا انشاءاللہ تو سورہ فاتحہ پہ بھی بات کر لوں گا, لیکن ابھی فی الحال جو ہے آپ نے ایک بات کی کہ اس کے اندر رکوع کا ذکر نہیں ہے اور رکوع کا انکار بھی نہیں ہے. اگر مجھے بتائیں الا فی اولی مرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ کو جو سمجھنا آپ یہاں ڈیبیٹ کرنے آئے, جی جی سمجھنا سمجھیے, لیکن آپ کے میری بات کو کمپلیٹ تو کرنے دیجیے. فلم یرفع یدیہ الا فی اولی مرہ, اس کا کیا معنی ہے؟ ہو گئی آپ کی بات مکمل؟ جی ہو گئی, اس کا ترجمہ کر دے بس. ارے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی بار رفع الدین کیا. جنازے کی نماز ہوتی نا, اس میں بھی صرف ایک بار رفع الدین ہوتا ہے. میں بھی خاموش آپ درمیان میں نہ بولیں, آپ درمیان میں بالکل نہیں بولنا. ابھی میں موقع دوں گا. خاموش کرو اس کو زید بھائی, خاموش کرو اس بندے کو. تحقیق بھائی آپ کیا کریں نا, آپ کو بولنے سے نہیں روک رہے ہیں, بس شیخ کو مکمل کرنے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں موقع دوں گا آپ کو بولنے کا, نہ بولے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں رکوع کا لفظ نہیں ہے. بھائی ایک نماز جنازہ کی ہم پڑھتے ہیں, اس میں اللہ کے نبی سے صرف پہلی بار رفع الدین ثابت ہے. میں اسی پہ عمل کرتا ہوں, میں بار بار رفع الدین نہیں کرتا, صرف ایک بار ثابت ہے, ایک بار میں کرتا ہوں. یہ جو آپ نے حدیث پیش کیا اس میں رکوع کا لفظ ہی نہیں ہے. اس کو لے جا کے آپ جنازے پہ عمل کرو, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک بار آپ رفع الدین کرو, باقی مت کرو, مجھے کوئی دقت نہیں ہے. لیکن آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ رکوع والی نماز کا ہے. اس میں آپ کو رکوع دکھانا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں میرے بھائی. اب ان کو موقع دیجیے زید بھائی, بولیے. جب بات آپ کی ختم ہو جائے گی تب مجھے بتائیے, بولنے دیجیے زید بھائی. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو جنازے پہ قیاس کر رہے ہیں, بالکل باطل قیاس ہے. کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ جنازے کی نماز میں تم کو سکھا رہا ہوں, بلکہ حضرت ابن مسعود فرما رہے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز جنازے کی یا کوئی خاص نماز نہیں تھی, بلکہ اللہ کے رسول کی خاص نماز تھی, جو اللہ کے رسول کی نماز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. دوسری بات یہ حضرت شیخ, میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہاں پہ یہ جو عبارت ہے اس کا آپ ترجمہ کریں جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, میں اسی کو ترجمہ کر دیں, آپ بات ختم ہے. دو باتیں انہوں نے کی کہ میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ جنازے کے بارے میں, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو ایک مثال دے دیا کہ وہاں بھی ایک نماز ہوتی ہے, ایک بار رفع الدین ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہو اس کے مطابق دلیل نہیں ہے. آپ نے رکوع کا دعویٰ کیا ہے, رکوع میں رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے. میں حدیث پیش کروں گا صحیح بخاری کی, جس میں باقاعدہ رکوع کا ذکر ہے. تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ رکوع والا رفع الدین چھوڑ دیا گیا. اب رکوع والا رفع الدین چھوڑا گیا, اس بات کی دلیل دینا پڑے گا. آپ نے جو ترمذی کی دلیل دی ہے اس میں رکوع والا رفع الدین نہیں ہے. جب تک آپ اس میں لفظ رکوع نہیں دکھا سکتے تب تک آپ کے دعوے کی یہ دلیل نہیں ہو سکتی. آپ کا دعویٰ خاص ہے, دلیل عام ہے. تو خاص جو دعویٰ کیا ہے آپ نے, اس دعوے کی آپ کو دلیل دینی پڑے گی. آپ کا اس میں کوئی جو ہے رکوع کا لفظ نہیں ہے, آپ کے دعوے کی دلیل نہیں ہے. رہی بات یہ کہ آپ نے کہا فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین نہیں کیا مگر صرف شروع میں. یہ اس کا ترجمہ ہے, آپ ترجمہ کر دیجئے, جو کرنا کر لیجئے. آپ جو بلکہ بغل میں انگلش میں لکھا ہوا وہی ترجمہ آپ کر لیجئے. زید بھائی بتائیے انگلش میں کیا لکھا ہوا ترجمہ اس کا انگلش میں کیا ترجمہ لکھا ہوا؟ یہ ان کو ہمارا ترجمہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا, یہ پڑھ لیں انگلش کا ترجمہ, بتا دیجیے ان کو کیا ہے. جی خود جو چاہے ترجمہ کر لیں. بالکل یہ آپ کے ترجمے سے میں متفق ہوں حضرت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفع الدین کیا, اس کے بعد نہیں کیا, صرف شروع میں رفع الدین کیا.
एक रिवायत में सुम्मा ला यहूद भी है, लेकिन मैं उसको पेश नहीं करूंगा, ठीक है। आप उसको बोलेंगे मैं क्या दुर्गत बनाऊंगा आपको बता मलायुद्ध की, लेकिन ये जो है एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए फिर आप बोलिए, आपकी बात सुन रहा हूँ। लेकिन ये पहले इस पर बात हो जाए। हाँ जी मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। इस रवायत में आपको रुकू का लफ्ज दिखाना पड़ेगा, आपने दावा किया, उसके बगैर कोई चारा नहीं। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो है कि हदीस है ये, कोई अपने फेवरेट अल्फाज इसके अंदर तो मैं डाल नहीं सकता, या आपके फेवरेट अल्फाज भी आपको दिखा नहीं सकता, ये आपकी या मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड है ना। तो हदीस से ये इस्तेदलाल है और वाज़ेह है कि हदीस के अंदर हजरत इब्न मसूद फरमा रहे कि अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते तो शुरू नमाज के अलावा रफुल यदैन नहीं करते। अब इसके अंदर सजदा भी आ गया, रुकू भी आ गया, सलाम वाला रफुल यदैन भी आ गया, जिसको जो है मुस्लिम शरीफ वगैरह में जो है जिक्र है, तो सारी चीजें। तो इस हदीस से हमें पता चल रहा लफ्ज जो है अपनी तरफ से नहीं डाल सकते या आपके फेवरेट अल्फाज में नहीं दिखा सकता, बल्कि हदीस से वाज़ेह तौर पर साबित है अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते हजरत इब्न मसूद ने देखा कि आप शुरू नमाज में रफुल यदैन करते, इसके बाद इसको नहीं दोहराते, ये हदीस के अल्फाज है। अब बाद में तो रुकू भी है, बाद में सजदा भी है, तो वाज़ेह अल्फाज के ऊपर तो मैं कियासी या अपनी तरफ से अल्फाज ऐड नहीं कर सकता आपकी चॉइस के। इतनी सी बात जी शेख। जब है ही नहीं तो कहां से ऐड करेंगे आप भाई, जब हदीस में नहीं है तो ऐड कैसे कर पाएंगे? हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, हमारी हदीस में है, हमारी दलील में तो आपने केट लगाई कि मैं यही अल्फाज से मानूंगा, ये तो बिल्कुल पार करो इसको, बाद में लाना इसको, मैं बोल लूंगा तब, बीच में नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला ना तुम्हारे बारे में, इसलिए नहीं बोलना। ये शख्स कह रहा है कि मैं ऐड नहीं कर सकता। अरे भाई कहां हम कह रहे हैं कि आपको ऐड करो, आप ऐड कर भी नहीं सकते, किसी हदीस में गढ़ भी नहीं सकते, लेकिन इस रिवायत में रुकू का लफ्ज नहीं है, ये सब बेवकूफ है। देखिए कोई और अहले हदीस आलिम होगा जिसको आप बेवकूफ बनाओ, मैं तुम्हारी ये सारी देवबंदी और हनफियों की चौचलेबाजी को समझता हूँ। ये लोग मुनाजरे में ऐसे परेशान करते ना हदीसों को, ता हयात का लफ्ज दिखाओ, इमाम की सरहद दिखाओ, मुक्तदी की सरहद। आज क्या हुआ है? आज मजा आ रहा है? अब क्या ये हो सकता है वो हो सकता है, जब हम कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहिल किताब, ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ, हमें क्यों नहीं मांगेंगे तुमसे सबूत भाई, क्यों नहीं मांगेंगे सबूत? तो इस बात का सबूत देना पड़ा, क्योंकि हमारी जो रवायत है, जो हमारा इस्तिदलाल है, सही बुखारी की रवायत है, उसमें सराहत है कि रफा यदि हाथ उठाया इज़ा रका, जब आपने रुकू किया, रुकू में जाते वक्त हाथ उठाया, वो इज़ा रफा रासहु मिन रुकू रफा यदैहि, और जब रुकू से सर उठाया तो हाथ रफल यदैन किया। तो हमारी जो दलील है उसमें लफ्ज रुकू की सराहत है। अब अगर इसको आप काउंटर कर रहे हो, इसके खिलाफ कोई बात ला रहे हो, तो उसमें भी रुकू का लफ्ज दिखाओ ना। एक ऐसी रवायत ला रहे हो जिसमें कुछ रुकू का जिक्र ही नहीं है, वो कौन सी नमाज कुछ अता पता नहीं है, उसको हम कैसे दलील मान लेंगे? जी कहां गए ज़ैद को लाइए। इसी बात को जो है इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने नकल किया हुआ है अपनी किताब में, और उन्होंने इससे मुराद जो है रुकू का रफुल यदैन लिया है, लेकिन आप मानेंगे नहीं सर, लिया होगा, मैं हदीस से ही जवाब दे रहा हूँ, दूसरी हदीस से जवाब दे रहा हूँ हज़रत। बुखारी शरीफ में दूसरे हदीस पे जाएंगे। देखो मैं इसी हदीस पे बात करना, मैं चुपचाप सुनूंगा आपकी बात, दूसरी हदीस नहीं लाना। इस हदीस को आप लिफ्ट कर दो, कह दो इसमें हमारी दलील नहीं है, फिर हम दूसरी हदीस पर बात करेंगे। जब तक इस हदीस के बारे में फैसला नहीं हो जाता, हम दूसरी हदीस नहीं पेश करने देंगे आपको। इस हदीस पे जो कहना बोलिए, या आप एतराफ कर लीजिए इस हदीस में हमारे दावे की दलील नहीं है, फिर हम दूसरी हदीस आपको पेश करने देंगे। जी मैं आपको इसकी दलील नहीं दे रहा हूँ, मैं बल्कि उसूल बता रहा हूँ आपको। जो उसूल आप बयान कर रहे हैं उससे तो सजदे का रफुल यदैन भी तर्क नहीं हो रहा, ना ही उसके इनकार की जो है कैफियत समझ में आ रही, क्योंकि वहां पे जो सजदे का रफुल यदैन है वहां पे कोई सराहत नहीं कि कहाँ जब जाते वक्त जो है इसको अल्लाह के रसूल ने नहीं किए या उठते वक्त नहीं किए, तो इसकी सराहत नहीं है। लिहाजा इस हदीस के अंदर मैंने आपसे कहा कि वाज़ेह अल्फाज है, जब शुरू के अलावा रफुल यदैन नहीं किया तो इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो गई, सारी चीजें इंक्लूड आ गई। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दलील वाली बात है, तो हटधर्मी हुई। अच्छा हटधर्मी हुई। और तुम्हारे जो बाबा लोग जो है यही चीता के में मुनाजरा हुआ था, अहले हदीस आलिम ने कहा था, यही हदीस पेश किया था, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहिल। ये देवबंदी उलमा चहक चहक के कह रहे थे इमाम दिखाओ, मुक्तदी दिखाओ। और ये इस बंदे ने भी क्या कहा कि इमाम जो है इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने इसके ताल्लुक से लिया है। अरे जो है अल्लामा लखनवी का हवाला पेश किया कि तुम्हारे हनफी आलिम ने ऐसा कहा है, तो ये देवबंदी क्या कहते, कहा होगा। तो भाई हम भी कहते हैं इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने किसी ने कुछ कहा है तो कहा होगा, हमें तो अल्लाह के रसूल की हदीस से लेना देना ना। तो आप अल्लाह तो हदीस में तो वाज़ेह है,
बीच में नहीं बोलना भाई, अल्लाह के रसूल की हदीस पेश कीजिए। और अभी बीच में एक बहुत गलत बात आपने लाई, दोबारा वो टॉपिक नहीं लाना। क्या सजदे में रफुद्दीन, सजदे में रफुद्दीन पर बात करनी है, किसी और दिन आओ बात करेंगे। अभी टॉपिक चल रहा है रुकू का रफुद्दीन, सजदे में रफुद्दीन है नहीं है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक नहीं चेंज करना। टॉपिक है रुकू में रफुल यदैन, रुकू में रफुल यदैन साबित है कि नहीं, इस टॉपिक पर रहना, इस टॉपिक से हटना नहीं। ये जो हदीस आपने पेश किया इसमें रुकू का लफ्ज दिखाओ, इसमें अपने दावे की दलील बताओ, बता सकते हो तो बताओ, नहीं बता सकते हो कह दो कि ये हमारे दावे की दलील है, फिर दूसरी हदीस बिल्कुल मेरे दावे की दलील इसमें ही है, ये दलील हमारे लिए काफी और शाफी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर वाज़ेह तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज हजरत इब्न मसूद बता रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते हैं तो शुरू नमाज में रफुल यदैन करते, इसके बाद इसको नहीं दोहराते। अब यहाँ पे हमें रुकू के अल्फाज दिखाओ, सजदे के दिखाओ, ये तो बिल्कुल जो है आपका मुतालबे है, लेकिन दीन और शरीयत जो है मुतालबे की मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, बात खत्म, हमारे लिए यही काफी है। अच्छा खामोश हो गए, एक मिनट जैद भाई जी, एक मिनट। आप जो ये कह रहे हो ना कि अब क्यों मुतालबा कर रहे हो भाई, तुम लोगों की ना जो देवबंदी हनफी लोग हैं इनकी चोचलेबाजी में जानता हूं, मैं इनकी नस नस से वाकिफ हूं। ये लोग जब बात करेंगे सूरह फातिहा पे तो कैसे मुतालबा करते, ये दिखाओ वो दिखाओ। तुमने दावा किया है रुकू का रफुल यदैन, ये तुम्हारा दावा है, अपने दावे के मुताबिक दलील क्यों नहीं पेश करो। आप एक हदीस पेश किए जिसमें रुकू का कोई नामो निशानी नहीं है, ये आपके दावे की दलील कैसे बन जाएगी। एक बात कि खुद तुम्हारा ये उसूल है, मैं जो मुतालबा कर रहा हूं तुम्हारे उसूल से मुतालबा कर रहा हूं। दूसरी बात है मुतालबा करने की, क्योंकि सही बुखारी की हदीस में रुकू मेंशन है, उसमें साबित है। जब रुकू की सराहत के साथ एक चीज साबित है रफुल यदैन, तो आप एक ऐसी चीज, ऐसी रवायत के जरिए उसको काट नहीं कर सकते जिसमें वो जिक्र नहीं। जैसे मछली मर गई तो खा सकते हैं, अब आप कौन हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, इस मुर्दे में सब कुछ आ गया, उसकी वजह से आप रद्द कर दो उस हदीस को, कुरान की उस आयत को लेकर आप उस हदीस को रद्द करने आ जाओ जिसमें खुसूसी तौर पर मेंशन होके मछली को कहा गया कि मछली मर गई तो भी उसे खा सकते, मछली को मेंशन किया गया है कि मर गई तो भी खा सकते, ये खास है। अब आप एक आम दलील लाओ कि नहीं हर मुर्दा जो है हराम है, कुरान ने कह दिया, इसमें मछली कैसे आएगी, क्योंकि मछली के बारे में खास जो है सबूत मौजूद है। तो ऐसे रुकू का रफुल यदैन जब खास रिवायत मौजूद है कि इसमें रफुल यदैन साबित है, तो आप एक आम रिवायत कैसे ला सकते जिसमें रुकू का जिक्र ही नहीं है, एक आम रिवायत कैसे ला सकते। इसलिए जब दावा आपने खास किया है तो दलील भी आपकी तरफ से खास आनी चाहिए, आप ही का उसूल है। और दूसरी बात, हमारी दलील में चूंकि मेंशन है रुकू, इसलिए आपको भी इसी दर्जे की दलील लानी चाहिए। दलील कैसे होती है वो हमारी सही बुखारी कहती है। जी जी हजरत, सबसे पहली बात तो मेरा ये दावा ऐसा है नहीं कि सिर्फ जो है रुकू का रफुल यदैन तर्क हो गया, सजदे वाला बाकी है। अगर ऐसी बात होती तो मैं दलील खास देता कि रुकू का रफुल यदैन तर्क हो गया, बाकी का बचा हुआ बाकी है। मेरा तो दावा ये है कि सिर्फ शुरू नमाज वाला रफुल यदैन बाकी है, बाकी सब जो है अल्लाह के रसूल ने नहीं किए, और यही अल्फाज हदीस के अंदर है। अब आप जो है दूसरे उलमा की भड़ास मुझको निकाल रहे कि उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, तो मेरा तो इनसे कोई सरोकार नहीं भाई। आपका दावा रिकॉर्ड है यहाँ पे, अभी दावा मत बोल दो, जी दावा मैंने दावा रिकॉर्डेड है, मेरा दावा ये था कि शुरू नहीं, आप झूठ बोल रहे मेरे ऊपर, शेख मेरे पे झूठ बोल रहे आप। ऐसे नहीं मानेगा, हटा इसको, बीच में नहीं बोला, मैं नहीं बोला ना बीच में, तुम बहुत बड़े जो 30 मार खा यहाँ के बीच में बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा हूं तुम बोलोगे। देखो दावा तुमने यही किया है, तुमको ये दावा नहीं करना चाहिए था भाई। अभी ये देवबंदियों का मुनाजरा हुआ था, वहां पे है अहले हदीस लोग भी कह रहे थे क्या कि भाई ला सलाता हमारा दावा सारी नमाजों से मुतल्लिक है, तो पर्चा उठाया क्या आपने, क्या लिखा है, आपने खास दावा लिखा है कि मुक्तदी के लिए, तो चूंकि आपने मुक्तदी कह दिया तो मुक्तदी वाली हदीस आपको लाओ, तो आपने यहां कह दिया रुकू, आपकी बात रिकॉर्ड है, इस स्ट्रीम में आपकी बात रिकॉर्ड है कि आपने रुकू पर दावा किया है, इसलिए रुकू से मुतल्लिक आपको दलील देनी पड़ेगी। आपने जो दावा किया है, जैसे रुकू के ताल्लुक से हमारा जो दावा होता है कि रुकू में रफल साबित है, मैं आपको हदीस दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, मैं सही बुखारी का जी तहकीक इन द माइंड आपको मैं 2 मिनट में देता हूं 735 चांस। जैद भाई जी सही बुखारी की जी हदीस लाइए 735 जी शेख। या
या रुकिए 736 लाइए, नीचे नीचे से आगे बढ़ाइए। 736 लाइए। दलील, दावे की दलील कैसे दी जाती है हम आपको बताते हैं। ये हदीस है, थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ, अरबिक टेक्स्ट बढ़ा करिए। देखिए अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तर्जुमा वसल्लम, कर दीजिए। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इदा काम फी सलात रफ़अ यदैहि, जब आप नमाज में खड़े होते तो रफ़अ यदैहि, दोनों हाथों को उठाते। हमारे जो भी भाई सुनने वाले हैं इन अल्फाज को अच्छी तरह से याद कर लें। फिस सलात नमाज में, यानी पहला रफ़ुल यदैन नमाज के अंदर है। हो सकता है किसी बहस में मैं इस हदीस को पेश करूं, तो जरा ये हर अहले हदीस को ये याद कर लेना चाहिए पॉइंट, ये नुक्ता कि फिस सलात है, पहला रफ़ुल यदैन कहा है, नमाज के बाहर नहीं, नमाज के अंदर है। फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, इदा कामा फिस सलात, कि जब आप नमाज में खड़े होते, रफ़ा यदैहि, हाथ उठाते थे, वकाना यफ़अलु ज़ालिका हीना युकब्बिरु लिर्रुकूई, और जब आप रुकू, देखिए रुकू का लफ्ज है, जब आप रुकू के लिए तकबीर कहते तो भी अपने दोनों हाथों को उठाते थे। वयफ़अलु ज़ालिका इज़ा रफ़अ रअसहु मिनर रुकूई, अब यहां फिर रुकू का जिक्र है, इसको बोलते हैं दलील, इसको बोलते हैं दलील। जब रुकू से सर उठाते तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क्या कहते हैं, समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हैं, और रफ़ुल यदैन कहते हैं, और समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहते हैं। और नीचे लाइए ज़द भाई, नीचे का हिस्सा लाइए। वला यफ़अलु ज़ालिका फिस सुजूद, एडवांस में देखिए बिस्मिल्लाह, ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, मैं हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं। वला यफ़अलु ज़ालिका फिस सुजूद, और ये काम रफ़ुल यदैन का काम सजदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। हमारा दावा क्या है, रुकू का रफ़ुल यदैन, इसमें रुकू का जिक्र है, जाते हुए भी रुकू का जिक्र है, रुकू से उठते हुए भी रुकू का जिक्र है, इसको बोलते हैं दलील, दावे की दलील। आप ऐसी कोई हदीस लेकर आओ जिसमें ऐसा जिक्र हो कि जब रुकू में गए रफ़ुल यदैन नहीं किया, रुकू से उठे नहीं किया, ऐसी कोई दलील आप जो है लेके आओ कि रुकू वाला रफ़ुल यदैन जो था उसको तर्क कर दिया। जी, उसके तर्क की दलील। आपका दावा क्या है, तर्क। आपका दावा है कि अल्लाह के नबी ने तर्क किया रुकू का रफ़ुल यदैन, अब रुकू का रफ़ुल यदैन तर्क किया गया, इस बात की कोई दलील नहीं है। जी जी मैं जी, बोलूं अभी अभी? आप बात कर सकते हैं। जी जी, अभी बोल सकते हैं, जी बताइए। अगर देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने जो मुतालबा किया हो ये सिर्फ लफ्जी मुतालबा है, ठीक है। बाकी मेरा मुद्दा जो है इससे साबित हो गया इद्दा मेरा। मसला ये है कि आप जैसे आपने अभी हदीस पेश की, उसके अंदर है कि फला यफ़अलु ज़ालिका फिस सुजूद, तो वो कौन सा मकाम था सजदे का जिसमें अल्लाह के रसूल ने जैद भाई मैंने पहले बोल दिया, डिस्क्लेमर दे दिया, मैं दोबारा नहीं टॉपिक चेंज करूंगा। मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? सिर्फ रुकू, मैं हदीस का तर्जुमा करते हुए सजदे तक पहुंचा, हजरत सिर्फ रुकू पर बात होगी। आपका उसूल आपको ही ये हो गया ना। तो चलिए, हाँ रुकू के बाद बात कीजिए, बताइए, बोलिए। जी, मैंने ये कहा कि हमें खास अल्फाज दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे जो हदीस के अंदर जो अल्फाज है उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दावा साबित हो रहा है। इसके अंदर कोई अगर कमी हो आप बताएं कि आप मुझे उस पर जो है पॉइंट आउट करें कि भाई देखिए यहाँ पे इससे मुराद ये रुकू नहीं आ रहा है। मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ शुरू का जिक्र है, बाकी की नफी, यहाँ पे नफी की हुई है। इला फी अव्वली मर्रा, इला जो है, ला जो है, आप ये लाखों हो जो है आपकी किताब में मैंने पढ़ा था ला के बारे में, तो इला फी अव्वली मर्रा का माना यही है कि बाद में इसको नहीं किया।
अरे ला ला चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सबूत मैंने पेश कर दिया सही बुखारी की हदीस। अगर सही बुखारी की ये हदीस ना होती, यानी रुकू का रफुल यदैन साबित है, एक चीज जब खुसूसियत के साथ साबित है तो एक आम हदीस पेश करके आप उसको रद्द नहीं कर सकते जो मेंशन होके जो चीज साबित है। आप रुकू के अलावा वो जो आप हदीस पेश कर रहे हैं ना कि एक ही बार जो है रफुल यदैन किया, आप उससे वो रफुल यदैन जो है रद्द कर सकते हैं जो साबित नहीं, जहां पे साबित नहीं। लेकिन जब ये साबित है रुकू का रफुल यदैन, तो जब यहां वजाहत है कि रुकू का रफुल यदैन और जो हदीस आपने पेश किया वहां रुकू का जिक्र नहीं है, वो आम सी बात है, वो आम रुकू वाली नमाज का जिक्र नहीं है, आम है वो। तो उसमें आप जिस नमाज पर भी ले जाना हो, फिट करना फिट कीजिए आप, लेकिन ये जहां फिट करना फिट कीजिए, लेकिन आप रुकू वाली नमाज पे फिट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ताल्लुक से हमारा दावा खास है, हमारा भी और आपका भी दावा खास है। इस खास दावे के मुताबिक हमने तो दलील पेश कर दिया, पूरी दुनिया देख रही है, दावा खास है रुकू वाला रफुल यदैन। इस खास दावे पर हमारी दलील भी खास है, हमने पेश कर दिया सही बुखारी से, पूरी दुनिया देखती। आपका दावा भी खास है, लेकिन आपकी दलील खास नहीं है। आपकी जो दलील है वो आम है। आम चीज खास और उमूम और खुसूस को टकरा नहीं सकते। उमूम और खुसूस का तारुज नहीं होता है। तारुज दोनों आम होगा या दोनों खास होगा, तब जाके तारुज होगा। लेकिन एक जगह एक दलील में कोई खास बात है, एक दलील में कोई आम बात है, उन दोनों को आप नहीं टकरा सकते, आप उन दोनों को नहीं टकरा सकते। अब जैसे जो है वही कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, एक आम सी आयत है। अब हदीस में कहा जा रहा है कि नहीं सूरह फातिहा पढ़ना है, तो अब ये खास है। अब उस आम आयत को पेश करके आप जो है नहीं मना कर सकते। ये सिर्फ मिसाल उसूल को समझाने के लिए मैं आपके सामने कह रहा हूं। तो जब एक खास बात हमने पेश कर दिया, रुकू की सराहत के साथ हम दलील पेश कर रहे हैं, आपको भी सराहत के साथ दलील पेश करना पड़ेगा। यहां आप बहस करने आओ, आपको क्या समझने में आता है, इस दलील से आपको क्या लगता है, आप जाके घर पे जो समझना समझ लो। आज आप हमसे बात करने आए हो, यहां आप मनवाने आए हो, तो ऐसे तो नहीं मनवा पाओगे ना। आपको क्या समझना भाई, वो तो आपकी मर्जी ना, आपके घर का मसला, जो चाहो समझो। लेकिन आप स्ट्रीम में आओगे और खास दावा करोगे और कोई भी आम दलील लाके पेश करोगे और ये सोचोगे नहीं मैं हुज्जत कायम कर दूंगा, तो ऐसा तो आपको नहीं करने दिया जाएगा ना भाई। तो आपने खास दावा किया है, दलील खास पेश कीजिए। और दूसरा टॉपिक सद्दों का रफुल यदैन मत लाइए, वो टॉपिक लाना आप लाइए कभी, हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन अभी टॉपिक चल रहा है रुकू वाला रफुल यदैन, हमने दलील पेश कीजिए, अभी दलील पेश कीजिए। सबसे पहले तो जो हजरत मुझे पूरा एक्सप्रेस में होने देते, आप मुझे पूरी बात रखने नहीं देते, आप बीच में बातें शुरू कर देते। और दूसरी बात, आप तो जो है सूरह फातिहा वगैरह के मुनाजरों की बातें करते, तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। मैं तो सिर्फ रफुल यदैन के ताल्लुक से सजदे तक चला गया तो फौरन आप जो है मेरे ऊपर जो है बातें करने लगते कि आप सजदे के रफुल यदैन की बात नहीं करो, ऐसे नहीं करो। बस बोलने दो सामने वाले की बात से, अपनी बात से मुझे एक्सप्रेस तो करने दो। आप बोल तो रहे हो ना। बात ये है जी, बात तो ये है कि मैंने जो दावा किया था कि सिर्फ शुरू नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन करते, ये वाज़े तौर पे इस हदीस के अंदर आ गया। अब आपका ये कहना है कि भाई मुझे रुकू के अल्फाज दिखाओ, तो मैंने कहा कि आपके फेवरेट अल्फाज में हदीस में नहीं डाल सकता। इस हदीस के अंदर से ये चीज साबित हो रही है कि सिर्फ शुरू में नमाज करते थे, यहाँ पे इला का जिक्र है, इसके बाद इसको नहीं दोहराने का जिक्र है, लिहाजा सिर्फ शुरू नमाज के बाद जितनी भी चीजें आ गई, अब वो रुकू हो, सजदा हो, सलाम हो, सब इसके अंदर इंक्लूड है। अगर मेरा ये दावा होता है कि भाई दूसरी चीज और है, तो बात अलग होती। आपकी बात खत्म हो गई, खत्म होगी भाई साहब आपकी बात, ठीक है। अभी बोलिएगा आप, जब मैं आपको बात खत्म करूंगा तो बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं कि हमने एक आम हदीस पेश कर दी, उसमें ये भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया, वो भी आ गया। ये बात आपकी तब सही होती जब रुकू के बारे में खुसूसी हदीस मौजूद ना होती रफुल यदैन करने की, समझ रहे? जैसे मैंने आपको मिसाल से समझाया, जैसे कुरान में है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कि मुर्दा खाना क्या है, हराम है, आप मुर्दा नहीं खा सकते। आप बोलो बकरी मर गई, नहीं खा सकते, ये दलील है, मैं मानता हूं, मैं मान लूंगा। आप बोलो बकरी मर गई और ये हदीस है कुरान की आयत दलील है कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, इसमें गर्चे बकरी का जिक्र नहीं है, लेकिन बकरी पर ये दलील फिट होगी, मैं एग्री करूंगा आपसे।
لیکن آپ بولو مچھلی پر بھی فٹ کر دو تو میں ایگری نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ مچھلی کے بارے میں بھائی حدیث موجود ہے سراحت کے ساتھ, حدیث موجود ہے. ایسے جو حدیث آپ نے جو ہے سنن ترمذی کی پیش کی ہے, آپ کسی ایسی نماز پہ فٹ کرو جس میں رکو نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جا کے فٹ کرو. لیکن اگر اس کو آپ لا کے رکو والی نماز پہ فٹ کرو گے کہ جس میں رکو ہے باقاعدہ, تو اس سے ہم اگری نہیں کریں گے, کیونکہ رکو کے بارے میں خاص دلیل موجود ہے. رکو کے رفع الیدین کے بارے میں خاص دلیل موجود ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث میں جہاں خصوصیت کے ساتھ رکوع کا ذکر ہے, جاتے ہوئے رفع الیدین, اٹھتے ہوئے رفع الیدین, ایسی حدیث کو آپ اس روایت سے رد نہیں کر سکتے جس روایت میں سرے سے رکوع کا ذکر ہی نہیں ہے. جیسے مچھلی کھانا صحیح حدیث سے ثابت ہے, اس حدیث کو آپ حدیث تو جانے دیجئے, قرآن کی آیت سے بھی رد نہیں کر سکتے آپ جس میں کہا گیا کہ مردہ نہیں کھا سکتے, کیونکہ یہ خاص جو ہے دلیل موجود ہے مچھلی کھانے کی. تو ایسے ہی جب رکوع میں رفع الیدین کرنے کی خاص دلیل ہے تو بھائی اس کا رد کرنا ہوگا تو آپ وہ حدیث لاؤ جس میں رکوع کا ذکر ہو. سمجھ رہے ہیں؟ امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی. جی تو اس ایک دلیل کے تعلق سے جو آپ کے سامنے بات آئی تحقیق بھائی, ہاں, اور جو کچھ باتیں شیخ کفایت نے آج ذکر کی ہے, لیکن ایک پریویس اسٹریم میں انہوں نے اور بھی ایسے کئی ساری باتیں ذکر کی تھی. مین بات یہ ہے کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو ہم سب آ کے اس پہ اتفاق قائم کریں. اگر ثابت ہے تو سب ٹھیک ہے الحمدللہ, جو نہیں ثابت ہے وہ نہیں ہے. اب اس میں تقدیم اور تاخیر کا بھی مسئلہ ہے, منسوخ کہنا کہ پچھلا منسوخ ہو گیا, اس کے اندر ناسخ منسوخ کا بھی مسئلہ ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے, ثبوت کے طور پہ کیا یہ بات ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, اس کے کئی سارے اینگل, اس کی سند کے اوپر بھی کوئی بحث ہے. چل ابھی ہم فی الحال کیا کرتے ہیں, یہاں پہ یہاں تک بات ہوئی. جی نہیں زید بھائی, اس ٹاپک پر چاہے یہ 1 سال بات کرتے رہے, میں یہاں سے نہیں ہٹنے والا. یہ انہیں جی ان کو لیفٹ کرنا پڑے گا اس دلیل کو, یا تو یہ رکوع کا لفظ دکھائیں یا اس کو چھوڑیں. آپ جب احتمال موجود ہے اس کے اندر دکھاؤ گے, میرے پاس جو ہے دلیل ہے, میں نے دلیل پیش کی اس کی. ارے رکو بھائی رکو, مجھے وہ دلیل میں احتمال ہے کہ نہیں ہے یہ مانو تحقیق بھائی. جب تک نہیں دعویٰ خاص کیا, دعویٰ خاص ہے کہ نہیں, دعویٰ آپ کا خاص ہے, دلیل بھی آپ کو خاص دینی پڑے گی. جب تک آپ میرے پاس 7% بیٹری ہے, سوئچ آف ہونے والا ہے, اس لیے میری جب تک آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل نہیں دو گے تب تک یہ بحث رکنے والی نہیں. میں ایک بار نہیں 1000 بار اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہو, اگر آپ نہیں میں نے ان کو نیچے کیا, اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بات چینج ہو دوسری حدیث, میں کب کہاں کہہ رہا ہوں, میں تیار ہوں, آپ دوسرے اس میں آئیے, دوسری اسٹریم میں آئیے, دلیل چینج کیجئے. لیکن آج پوری دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعوے کے مطابق آپ نے دلیل نہیں دیے. یہ میسج جانا چاہیے. جو اہل حدیث علماء کو پریشان کرتے ہیں آپ لوگ نا کہ مقتدی کا ذکر دکھاؤ, امام کا ذکر دکھاؤ, یہ ہتھوڑا برسنا چاہیے تمہارے علماء پر کہ کیوں جو ہے پریشان کرتے ہو, تنگ کرتے ہو. تو جب تک آپ دلیل نہیں دو گے, رکوع کا لفظ نہیں دکھاؤ گے, تب تک یہ گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. آپ کو اگر دوسری دلیلیں لانا ہے ہم تیار ہیں, آپ جو ہے دوسری مجلس میں لاؤ دوسری دلیل, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جی کہاں گے بھائی صاحب, 1 منٹ رکیں, ان کی بیٹری لو ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں. نہیں آ گیا ہے, موجود ہے تحقیق بھائی. میرا فون کبھی بھی سوئچ آف صحیح ہے, اس لیے میں اپنی صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی تو بات یہ ہے, میں نیکسٹ ویک سوچا ہوں, لیکن جی بالکل, انہوں نے جو ہے جو باتیں رکھی وہ اہل علم کے لیے واضح ہے, وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے, شیخ بھی سمجھ گئے. تو اس میں مجھے ایسی کوئی بات نہیں لگی کہ اس کے اندر سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی. الحمدللہ میں نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا ہے. آئندہ ہفتے میں دیکھا ہوں گا, پھر بات کروں گا. بالکل ویلکم, سبحان اللہ, ویلکم. آپ آئیے, دوسری دلیل لائیے گا, اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ دلیل کا سیم دلیل, سیم دلیل پہ اگر الگ جواب دیں گے آپ تو بہتر ہوگا. یہ مجھے جواب صحیح نہیں لگا. نہیں, آپ کے دعوے ہیڈ گرمی ہے, آپ جو فیوریٹ الفاظ مانگ رہے ہیں, ہیڈ گرمی کہا جاتا ہے. میں نے تمہارے سارے مناظروں کو دیکھ رکھا ہے, تم لوگوں کی جو عادت ہے نا دیکھ رکھا ہے. میں وہ اہل حدیث نہیں ہوں بھائی جو تمہارا بوجھ سر پہ اٹھاؤں. میں بار بار کہہ دیتا ہوں, میں بوجھ تمہارے سر پہ لادنے والا ہوں. میں تمہیں ثبوت دینا ہے, مجھے پریشان نہیں کر سکتا کوئی. آپ صرف بدتمیزی کرتے رکھوں گا, میں تمہارا دیا ہوا ہوم ورک نہیں کروں, تمہیں ہوم ورک کروں. چلیے ابھی فی الحال یہ ہے, یہاں پر بات ہماری یہاں تک جو پہنچی تو تحقیق بھائی سے شیخ کفایت تقاضا کر رہے تھے کہ بھائی کوئی
वाज़े तौर पर इसके अंदर खास दलील ले आओ जिसमें ये बात जिक्र हो, क्योंकि आप है जब एक जैद भाई, इतनी सारी जैद भाई अहादीस इनके मौजूद पास है। है, जैद भाई जी इनके पास रुकू हाँ वाली भी हदीसें हैं, इनको प्रॉब्लम हाँ क्या है? लाओ ना इसको छोड़ के हम बात करेंगे, है इनके पास, हाँ इनके पास ठीक है थोड़ा सा चिंगारी दिखा रहे थे उस रवायत की, तो इनके पास ऐसा नहीं कि नहीं है, इनके पास। हम तो चाहते हैं लाओ, अगली स्ट्रीम में आप लाओ हदीसें भाई, हम आपसे बात करेंगे, मुझे पता है जी आपके पास है भाई, इसको छोड़ो वो लाओ, इसमें कोई दलील हाँ। नहीं है आपकी, उसमें भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो शेख किफायत ने बताया इससे तो कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज जो है ना, आपके पास हजरत रुको कोई एक जवाब मिनट नहीं था इस पे। मैं आइंदा और दलीलें लाऊंगा, लेकिन इसका आपके एक पास कोई जुमला, जवाब नहीं था। आइए मैं एक मुनाजरे का जुमला सुनाता हूँ। सूरह शेख फातिहा एक में मिनट रुके। मुनाजरा हो रहा था देवबंदी और अहले हदीस का, तो हनफी क्या बोलता है, कहता है कि सूरह फातिहा के बारे में अहले हदीस जो भी दलील देगा, अगर वो सही होगी तो सरी नहीं होगी, और अगर सरी होगी तो सही नहीं होगी। यानी एक जुमले में पूरा वो वाजे कर रहा है। अब जैसे कोई अहले हदीस दलील पेश करता, इसमें किधर मुक्तदी का जिक्र है, किधर, ऐसे मारा 2-3 घंटा जाया कर दिया उसने, है सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया तुम्हारे ही उसूल से मैं तुमको जवाब दे रहा हूं, कि तुम्हारे ही सिखाए हुए, तुम्हारी ही पढ़ाई हुई उसूल है। दावा खास करोगे तो भागने नहीं दूंगा, आपको खास दलील देना पड़ेगा। दावा खास, दलील खास, ये तुम्हारे मैदान मुनाजरा का स्लोगन है, ये तुम्हारी बातें हैं, ये तुम्हारे उसूल हैं, ये तुम्हारे ज़ाब्ते हैं। जब सूरह फातिहा पे बैठे तो यही सब करते हो, तो आज तुम पर पलट के यही वार पड़ रहा है, तो कोई तकलीफ हो रही है। जो भी मेरे सामने हदीस पेश करेगा मैं उससे यह मुतालबा करूंगा, हमारी दलील में रुकू का जिक्र है, तुम भी रुकू का दिखाओ। नहीं दिखा सकते, दूसरी हदीस लाओ, अभी देखो उसकी क्या दुर्गत बनाते हैं, रवायत को लेके आओ ना आप, अगली स्ट्रीम में बात करेंगे उस पर भी। तहकीक भाई, आप असल मसला समझने की कोशिश करो कि हम लोग है ना कबूल करने तैयार है, लेकिन साबित होना चाहिए। अब यहाँ मसला ये है कि ये जो आपने दलील पेश किए, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये सिर्फ दूसरी नमाज, बगैर रुकू वाली नमाज के बारे में है, यानी कि इसके अंदर बात कंफर्म नहीं हो रही है। अब आप इतनी सारी अहादीस मौजूद है, इतनी सारी अहादीस मौजूद है, रुकू में रफू यदैन करना, हम जैद समझा भाई रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जैद भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि वो हदीस किस बारे में है, ये इनकी जिम्मेदारी है। हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसमें रुकू का लफ्ज नहीं, बाकी हम कुछ नहीं जानते। हमारे दावे को काउंटर करना है, हमारी दलील को, तो आप ऐसे दलील लेकर आओ। बाकी हदीस कहाँ के ताल्लुक है, किसके ताल्लुक से, हमें क्या ले देना। हमारे पास तो सही बुखारी की हदीस मौजूद है, जैसे मछली खाने की बात है, मेरे पास हदीस मौजूद है, मछली मर गई तो खा सकते हैं। तो आप कोई भी दलील लाओ, हमें क्या ले देना उससे, वो किसके लिए किसके लिए नहीं है। हमारे हाथ में जो दलील है उसका काउंटर करो ना। सही बुखारी की दलील है, रुकू का जिक्र है, उसके खिलाफ कोई बात लाओ ना। ठीक है जी। शेख सरफराज, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मेरे ख्याल से काफी बात है, बस इतना कह रहा था ना, जैसे वो जो बात आई कि भाई ये किससे मुताल्लिक, ये हदीस तो नमाजों के अलग अलग तरीके हैं। जैसे एक बात ये आई कि हो सकता है जनाजे से मुताल्लिक हो, वैसे ही हो सकता है कि ये जो है ना वो ईदैन की नमाजों से मुताल्लिक हो। और इब्ने मसूद ये बताना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज में पहली तकबीर पर रफलदैन किया और बाकी तकबीरात पे रफलदैन नहीं किया। तो एहतिमालात तो बहुत सारे हैं। एक बात मैं ये कहना चाह रहा था, दूसरी बात मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस एक बात रखना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये बहुत मर्तबा हमने देखा है ना कि अहनाफ का जो मौक़िफ़ होता है जमीन पर, स्ट्रीम में आकर के वो मौक़िफ़ तब्दील कर देते हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो उनको पता है कि वो हकीकी मौक़िफ़ का अपने दिफा नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आकर के मौक़िफ़ तब्दील करते हैं। आम तौर पे आप हनफी उलमा से या हनफी अवाम से जब बात करते हैं ज़मीन पर, तो वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल-यदैन तर्क कर दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ुल-यदैन वाली हदीसें मनसूख हैं। ज़मीन पर आप जाकर के किसी भी हनफी से बात करें, वो ये दावा नहीं करता जो दावा ये साहब आकर के यहाँ कर रहे थे कि रफ़ुल-यदैन किया भी है और नहीं भी किया है। ये वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल-यदैन तर्क कर दिया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रफ़ुल-यदैन की हदीसें हैं वो मनसूख है, ये बात वो करते हैं। लेकिन क्योंकि अपने उस मौक़िफ़ को यहाँ पे आकर के साबित नहीं कर सकते हैं ना, तो सिर्फ ये मुनाज़रे की सतह पर ही ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि किया भी है और नहीं भी किया है। ये मौक़िफ़ ज़मीनी सतह का नहीं है, ये सिर्फ मुनाज़रे की दुनिया का। वो जो आपने कहा ना कि ईदैन से मुत्तलिक, ये बंदा खुद ईदैन पे नहीं फिट होने देगा। जो है ना कि एक बार किए दोबारा नहीं किए। भाई दूसरी रकत में खड़े होते हैं, तकबीर ज़वाइद में क्या ये रफ़ुल-यदैन नहीं करते हैं हनफी लोग? शेख नहीं करते, हाँ, इनका क्या मौक़िफ़ है? करते हैं ना तकबीर ज़वाइद में। तो अगर इसको हम कहें आम है तो फिट करो ना पे। हाँ, अभी नमाज़ी भी तिरबी है, सब नमाज के लिए आम कर रहा था, अभी ईद के लिए उसको कर रहे थे और ईद के लिए जो है,
ये जो है वितिर के लिए नहीं है, हाँ, ये जनाजे के लिए नहीं है। अरे भाई किस किस को निकालोगे आप इसको? तो जब आम है तो आम, जब कोई वजाहत नहीं, जब आप कहते हो कि ये जनाजे पे इस पे नहीं चल सकता, जनाजे पे नहीं चल सकता, ईद वाली नमाज पे नहीं चल सकता, वितिर पे नहीं चल सकता, तो फर्ज नमाज में कैसे चल जाएगा भैया? हमारे पास जब खास दलील है, ये लोग इसी बुनियाद पे कहते हैं ना, कहते ईदैन में अलग से दलील मौजूद है, वितिर में अलग से दलील मौजूद, हालांकि वो साबित भी नहीं है, जनाजे का अलग तरीका मौजूद है। तो ऐसे भी फर्ज नमाज के बारे में रुकू की वजाहत इतनी बड़ी सराहत मौजूद है सही बुखारी में, उसके बरखिलाफ इनकी झोली में कुछ नहीं है। ये बेचारे कितने मुझे तरस आता है, इनकी यतीमी पे तरस आता है, यानी कितने यतीम हो दामन पकड़ के रखे हुए। उसपे जरह तादिल की बहस भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहस बहुत पेचीदा है। हाँ, इनके पल्ले नहीं पड़ेगा वो बहस, और बहुत बहुत पेचीदा, पूरी रात चली जाएगी, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। पहले इसमें इसका अगर कोई ऐसा तरीक बंदा ले आए, इस मतन का कोई ऐसा तरीक कोई ले आए जिसमें रुकू का जिक्र है, फिर हम सनद पर बात करेंगे। हमारी नजर में रवायत ज़ईफ है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। अगर आप इस रवायत में लफ्ज रुकू ले आएंगे, फिर हम सनद पर आ जाएंगे बात करने के लिए। जी, तो ये भी मैं कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ कमेंट पे मैंने बाज भाइयों को देखा कि वो कह रहे हैं कि क्या जो रफुल दिन नहीं करता उसकी नमाज बातिल है आपके नज़दीक। भाई यहाँ हम तो बातिल होने की बात ही नहीं कर रहे हैं ना कि रफुल दिन नहीं करने वाली नमाज बातिल की होती है या सही होती है। हम बात कर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, नमाज वैसी पढ़ो जैसे आपने मुझको पढ़ता देखा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज पढ़ी है वैसी नमाज पढ़नी है। नमाज तमाम इबादतों की सरदार है, और ईमान वाले बंदे की ये हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि मैं वैसी नमाज पढ़ूं जैसी रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ी है। तो क्या ज़रूरी है कि हर मसले में जब तक कि उसके बातिल और सही होने का मसला ना हो तब तक उसकी तहकीक नहीं की जाए, उस पर गुफ्तगू ना की जाए? सुन्नत पर भी तहकीक और गुफ्तगू होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, रफ़ुल यदैन का मसला ना एक ऐसा मसला है जो दीनी मसाइल में एक नुमाइंदा मसला है। हमने आमतौर पे ये देखा है कि एक इंसान तहकीक का रास्ता इख्तियार करता है या तकलीद का रास्ता इख्तियार करता है, उसका फैसला इन्हीं मसाइल में होता है कि एक बंदे ने अगर रफ़ुल यदैन में ये तस्लीम कर लिया कि ठीक है इस मसले में मैं अपने इमाम का कौल छोड़ करके हदीस मान लूंगा, तो ज़िंदगी के दिगर मसाइल में भी फिर वो इसी मौक़िफ़ को इख्तियार करता है कि ठीक है हदीस साबित हो गई तो मैं इमाम के कौल को तरजीह नहीं दूंगा हदीस पर। तो हम रफ़ुल यदैन पर इसलिए भी खुसूसी तौर पर बहस करते हैं ना कि भाई हदीस में जो आमाल हैं, आमाल में सबसे अहम तरीन अमल नमाज है, और रफ़ुल यदैन नमाज से मुतालिक मसला है। तो नमाज के मामले में जब आदमी ये तय कर लेता है ना कि मैं रसूलुल्लाह के की हदीसों को तरजीह दूंगा इमाम के कौल पर, तो फिर जो इबादत के अलावा मामलात से मुतालिक चीज़ें हैं, गैर फ़िक़ही मसाइल है, उसमें भी वही मनहज इख्तियार करता है। तो ये रफ़ुल यदैन का मसला महज एक सुन्नत का मसला भी नहीं है। हालांकि सुन्नत का मसला होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि रसूलुल्लाह की सुन्नत का मसला है। आप खुद देखेंगे कि सलफ़ के यहाँ रफ़ुल यदैन के हवाले से जो पाबंदी थी, बल्कि बाज़ मरतबा सख्ती थी। ये ऐसा नहीं कि ये बहसें आज हम कर रहे हैं, रफ़ुल यदैन पर तो बहसें हुई, सलफ़ के यहाँ पर भी बहसें हुई। भाई बाकायदा इमाम ने इस पे जुज़ रफ़ुल यदैन पे बाकायदा मुस्तकिल तसानीफ़ लिखी हैं। तो ये तो सुन्नत पर बहस करना, और ख़ास तौर पे सुन्नत रफ़ुल यदैन पर बहस करना, ये तो सलफ़ का तरीक़ा रहा है। तो ये ऐसा भी नहीं कि अगर ये सुन्नत है तो कोई छोटी मोटी चीज़ है, सुन्नत अपने आप में बड़ी चीज़ है। लेकिन ये सिर्फ एक सुन्नत की बहस नहीं है, ये एक मनहज की बहस है। रफ़ुल यदैन का मसला एक मनहज की नुमाइंदगी करता है कि भाई आपने दीन के मामले में वो तक़लीद वाला मनहज इख्तियार किया है या तहकीक और इत्तिबा वाला मनहज इख्तियार किया। इसलिए भी इस पर हम बहस करते हैं। बाकी हम किसी को ये लाजिम थोड़ी करते हैं कि कोई आए भाई हम जब जबरन उससे रफ़ुल यदैन करवा रहे हैं कि नहीं तुम ज़बरदस्ती रफ़ुल यदैन करो। जो लोग आते हैं यहाँ पर बात करते हैं उनसे बात की जाती है। बल्कि एक तरह का तज़ाद भी ये देखने में आता है कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि हम अभी देखिए इस गुफ्तगू से पहले जो गुफ्तगू हुई एक भाई से, वो कह रहे हैं कि हम तो भाई मुक़ल्लिद हैं और हमको कोई दलीलों का इल्म नहीं होता है, तो हम इसीलिए आँख बंद करके तक़लीद करते हैं। और उसके फौरन बाद एक भाई आए और वो पूरी दलीलों से जुमहूर उम्मत का कौल रद्द कर रहे हैं और इमाम अबू हनीफा का मसलक राजे साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बार बार हमने ये सवाल किया इस स्ट्रीम में और लोग इसका जवाब नहीं देते आकर के कि एक तरफ तो आप जब तकलीद की बहस होती है तो एकदम जाहिल बन जाते हैं, कहते हैं हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। अभी एक भाई कह रहे थे हम कौन होते हैं फैसला करने वाले इम्मा के दरमियान। तो जब तकलीद को साबित करना होता है तो आप यहाँ के कहते हैं हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। और जब अपने इमाम के मसलक को राजे साबित करना होता है तो सुभान अल्लाह जुमहूर का कौल रद्द करने का इल्म आपके पास इतना आ जाता है कि आप जुमहूर के मौक़िफ़ को रद्द करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर माशाअल्लाह। तो ये आपके रवैये में तज़ाद क्यों है?
کہ ایک طرف تو آپ جاہل بن جاتے ہیں جب تقلید ثابت کرنی ہوتی ہے، اور جب امام کا مسلک صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ علم کا دریا بہانے لگتے ہیں، آپ پہاڑ بن جاتے ہیں علم کا. یہ تضاد کیوں ہیں؟ اب اس پہ غور کریے گا آپ، انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی. اچھا ایک چیز اور واضح کر دیں، بھائی صاحب کا جو دعویٰ تھا اس کے صرف ایک پہلو پر بات ہو سکی، دوسرا جو دعویٰ لیے ہوئے تھے ترک کا، بھائی اگر اس روایت میں رکوع کا ذکر آ بھی جاتا اور سند بھی ثابت ہو جاتی تو بھی ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا ترک کا. اسی کیونکہ بہت سارے اہل علم بلکہ حنفی لوگ ہیں جو اس روایت کو ثابت مانتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں دونوں صحیح ہے، یعنی رفع الدین کرنا بھی صحیح ہے، چھوڑنا بھی صحیح ہے، کیونکہ تقدیم و تاخیر کا ثبوت نہیں ہے. یعنی اس روایت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ عمل آخر میں تھا، یہ عمل آخر میں تھا. تو یہ جو بھائی صاحب دعویٰ لے کر اٹھے، نمبر 1 رکوع والا نماز اور نمبر 2 ترک، ان دونوں میں سے کوئی بات اس روایت میں نہیں ہے، نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ یہ ہے کہ ترک یعنی یہ بعد کا ہے، یعنی ترک کا مطلب یہ منسوخ مانتے ہیں کہ بعد میں یعنی آخری عمل یہ تھا. تو اس میں کہاں روایت میں منشن ہے کہ آخری عمل تھا؟ بھئی امام بیہقی وغیرہ نے بعض لوگوں نے یہ بھی تک کہا ہے کہ یہ پہلے کا رہا ہوگا، یعنی یہ عمل یعنی شوافی کے یہ لوگ حنفی ہے نا، شافعی کیا شافعی روایت کرتے ہیں، تو شافعی اس حدیث کا جواب دیتے ہیں یہ پہلے کا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ جو حدیث ہے صحیح بخاری میں وہ بات کی ہے. تو بھائی آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بعد والا کیوں مانتے ہو؟ شافعی جو کہتے ہیں کہ یہ پہلے کی ہے، شوافی اس حدیث کو صحیح مانتے، تو شوافی کہتے ہیں وہ حدیث پہلے کی ہے اور رکوع رفع الیدین جس میں ثابت ہے وہ بات کی ہے. تو آپ بھائی جو ہے آپ اس کا کاؤنٹر کے شوافی کو کیا جواب دو گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث اگر ثابت بھی ہو جائے تو پھر اختیار کی بات آئے گی کہ دونوں آپشن ہے. بعض علماء جو ثابت مانتے وہ کہتے ہیں رکوع رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور نہیں کرنا بھی ثابت ہے، دونوں پہ عمل کرنا جائز ہے. بلکہ بعض حنفی علماء کے بارے میں چپکے کرتے تھے اپنی انفرادی نمازوں میں کہ اس پر بھی عمل ہو جائے. تو یہ واضح رہے، تمام اہل حدیث کو جاننا چاہیے، یہ لوگ آپ کو بیوقوف نہ بنانے پائیں. یہ اپنی تقریروں میں بڑے دھواں دھار کہتے ہیں کہ دیکھو ترک کی نص کی دلیل ہے، لیکن اس میں ان سے مانگو، مطالبہ کرو کہ بھئی اگر آپ اس کو دلیل بناتے ہو کہ یہ جو رفع الیدین ہے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اور بعد میں بند ہو گیا تھا، تو اس کی دلیل لاؤ کہ اس کو ترک کر دیا گیا.